So good afternoon, everyone. Assalamu alaikum and welcome to online career guidance seminar organized by Association of Muslim Professionals to take informed decision at the right time for students who could bring in wonderful opportunities. So today I have with me Mr. Baris Sardar, who is the head of Career Counseling Cell, Ms. Asma Firdos, who is head of School Development Program, and our speaker of the day, Mr. Fahim Momin, who is a career counselor and lecturer at Samodia Junior College. So today's session, as we all know, is about career in arts. But before we start the session, I would like to introduce Association of Muslim Professionals to everyone out here. It will not take a long time, just a couple of minutes, and we'll just share a few slides about Association of Muslim Professionals. So about AMP, Association of Muslim Professionals. So AMP is registered in India, United States of America, United Kingdom, and Australia as a non-profit organization. AMP has completed its 12 years serving our community in the field of education, employment, and empowerment. AMP has a vision to positively impact the lives of 10 million people by 2030. AMP's mission is to empower the underprivileged for the greater benefit of the society in general and nation as a whole. AMP's vision is to be a model community which is advanced in education, socially progressive, culturally vibrant, politically influential, economically dynamic. What AMP has achieved in last 12 years is right in front of you, and I think I don't have to go through the entire slide. As you can glance through it, that we have school development programs, we've got employment assistance cell, we've got scholarship and self-employment program where we help students for higher education through scholarships, and we also help orphan education. We also have our AMP Resource Center where we have career counselors. These career counselors have so far helped more than 2,000 plus students to choose their career. We also have awards and partnership programs. So we have so far awarded more than 280 plus renowned educationists who are connected and awarded through AMP. School Development Program is one of the flagship program of Association of Muslim Professionals. And in that program, we have so far conducted more than 2,750 plus school development lectures. AMP is connected to 800 plus school. And so far, the students who are benefited through these programs are 275,000. AMP also conduct teacher training and parenting workshops. So far, we have conducted 100 plus teacher training and parenting workshops. What AMP has presence in terms of ground presence and online presence. So we've got more than 100 active chapters, which means we are present in more than 100 cities. We are present in 25 states within India, and we are present in 16 countries. We have got active volunteers who are there in 16 countries. We have got more than 6,000 active members who are connected on ground with AMP. Our online presence, we have got 125,000 members and professionals who are connected through social media on Instagram, Facebook, Google Group, LinkedIn, and WhatsApp. If you wish to join AMP, you can just log on to www.ampindia.org/join-AMP, and we would be glad to have you all on board. It would be much appreciated if you can join AMP and serve the community. So now I would like our speaker of the day to take over the session, but before that, we'll just have a short qiraat and then we'll start the session. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. All the participants who are already here, I would request them, if they have any questions, kindly raise their questions in Q&A, and these questions will be addressed at the end of the session. We'll keep 15 to 20 minutes specifically for Q&A, so your questions will be addressed over there. And I request you all to kindly raise questions related to the topic and do not ask any questions off the topic. Thank you so much. I request Fahim Momin Saab to please conduct this session from here on. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Myself Fahim Momin. I am
from Bhiwandi Samadhiya High School and Junior College, and today's session about career in arts faculty. Though most of the students and most of the parents, they think that arts is not as important as the science and commerce, but I would say that it is just a misconception. Arts faculty is also very much important as compared to science and commerce faculty. So let us start with the PowerPoint presentation of arts, why arts is important, and the opportunities through arts faculty. I would like to share my screen. तो स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे अहम बात हम लोगों को ये समझ लेनी है, ख़ास तौर पर जो हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं, कि देखिए किसी भी सूरत में आप ये मत समझिए कि आर्ट्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैकल्टी नहीं है, और बहुत सारे स्टूडेंट जिनका परसेंटेज कम आता है, सिर्फ वही लोग जो है वो आर्ट्स फैकल्टी में जाते हैं और कोर्स करते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना है, अपने जहन से इस बात को निकाल देना है कि आर्ट्स फैकल्टी इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है। आज भी हम देखते हैं कि हमारे मुल्क का जो टॉप मोस्ट जो ऑफिसर्स होते हैं, जिनको हम लोग IAS ऑफिसर्स या IPS ऑफिसर्स कहते हैं, बेसिकली जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो जो तैयारी करते हैं उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो आर्ट्स से बिलोंग करता है, आर्ट्स फैकल्टी को बिलोंग करता है, जिसके अंदर वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और दूसरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ते हैं। उसमें दूसरे भी सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये है कि बहरहाल एक बड़ा पार्ट उसके अंदर जो है वो आर्ट्स फैकल्टी से स्टार्ट होता है। तो ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स जो ये समझते हैं कि हमको जो है वो आर्ट्स फैकल्टी में कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनको जो है वो अपने जहन से सबसे पहले ये बात निकाल लेनी है, और उनको ये सबसे पहले अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक, अगर उन्होंने अभी 10वीं के इम्तिहान से पहले अपना जो एप्टीट्यूड टेस्ट हर स्कूल में होता था अगर उन्होंने दिया होगा, तो उनको अब तक के एप्टीट्यूड टेस्ट उनके पास होगा, वो उसमें ये देखें कि उनकी जो एप्टीट्यूड है वो क्या बताता है। वो फाइन आर्ट्स की तरफ बताता है, आर्ट्स की तरफ बताता है, या यूनिफॉर्म सर्विसेज अगर उसमें आता है, तो इसका मतलब ये है कि आर्ट्स इज़ द परफेक्ट फैकल्टी फॉर देम। उनको जो है वो आर्ट्स फैकल्टी में जाना चाहिए, और आर्ट्स फैकल्टी में और कौन कौन से कोर्सेज होते हैं हम लोग जो है वो उनके बारे में और यहाँ पर देखेंगे। तो ये वही जो बातें मैंने अभी कही हैं उसी के बारे में है कि बहुत सारे लोग जो है वो समझते हैं कि आर्ट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू BSc और BCom या दीगर कोई और फील्ड, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे चल के हम ये देखते हैं कि इसमें हम अलग अलग करियर किस तरीके से बना सकते हैं, और ज़्यादातर जो जनरल करियर्स होते हैं उनके लिए आप जो है वो आर्ट्स ग्रेजुएट हो तो आसानी से आपको जो है वो किसी भी फैकल्टी में, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो, मास कम्युनिकेशन हो, सिविल सर्विसेज हो, टीचिंग की जॉब हो, इस तरीके के इसमें आपको जो है वो आसानी से बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनके अंदर हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोग आगे चल के एक के बाद एक देखते हैं। अभी देखिए आपके स्क्रीन पर जो बात नज़र आ रही है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम आर्ट्स फैकल्टी को अलग अलग कैसे बांटते हैं, उसको कैसे जो है वो अलग अलग हम डिस्टिंग्विश करते हैं। कि एक हिस्सा होता है इसका लैंग्वेजेस का, यानी अगर आप जो है वो ज़बानदानी, लिटरेचर ये पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें जो आर्ट्स फैकल्टी के अंडर में आती हैं, जिनमें बहुत सारी ज़बानें हो सकती है। मैं फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ एक जो यहाँ पर स्टूडेंट अगर होंगे तो मैं उनको सिर्फ एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल के गुज़िश्ता दिनों, गुज़िश्ता साल लास्ट ईयर मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन का एक कोर्स कर रहा था, और मैंने उस दरमियान में ये देखा कि जर्मन लैंग्वेजेस की जो क्लासेस होती हैं उसके उनके पास बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर उसके डिप्लोमा कोर्सेस में कम से कम 7 से 8 डिवीज़न है, और हर डिवीज़न में कम से कम 60 to 80 स्टूडेंट्स हैं। यानी अराउंड अगर हम ये देखें तो 500 से 600 स्टूडेंट ऐसे थे वहाँ पर जो सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए उन्होंने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी के बहुत ही डिप्लोमा कोर्स के अंदर। तो आपको इससे ये अंदाज़ा लगाने में मदद मिलेगी कि फॉरेन लैंग्वेजेस की कितनी इम्पोर्टेंस है, कितने ज़्यादा लोग सीख रहे हैं, हमारे अपने स्टूडेंट कितने जाना चाहते हैं। तो लैंग्वेजेस अगर आप जो है वो सीखना चाहते हैं तो आपको दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो मास्टरी हासिल करनी चाहिए।
क्योंकि इसके ही थ्रू आप जो है वो बहुत सारी एम्बेसीज के अंदर, और आपको अगर एक से ज़्यादा जो है वो लैंग्वेजेस आती हो, तो आप जो है वो ट्रांसलेशन डिवीज़न के अंदर और एम्बेसीज के अंदर बहुत काम होता है, और ट्रांसलेशन का आज बड़े पैमाने पर बहुत काम चल रहा है। तो आप जो है वो ये समझ के चलिए कि लैंग्वेजेस क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, जिसके ज़रिए हम आर्ट्स फैकल्टी के ज़रिए जो है वो बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस की लाइन में लिखा हुआ है, आपको पता है, आप देख रहे हैं उसमें। उसके अलावा फिर दीगर जो सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल स्टडीज़, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इस तरीके के जो बहुत सारे दूसरे कोर्सेज, आर्कियोलॉजी, म्यूजियोलॉजी, ये सारे कोर्सेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कोर्सेज के अंदर आप 10 के बाद 11th और 12th कर सकते हैं आर्ट्स फैकल्टी से, और अपनी चॉइस के हिसाब से आप जो है वो फिर मास्टर्स कर सकते हैं, आगे चल के उसमें बैचलर डिग्री हासिल कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर आप जो है वो करियर उसके अंदर चुन सकते हैं। बहुत सारे आपके साथ ऑप्शंस हैं। उसके अलावा दीगर जो कोर्सेस हैं उसके अंदर टीचिंग है, जर्नलिज्म है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है। हम लोग एक के बाद एक जो है वो अलग अलग स्लाइड के ऊपर बहुत अलग अलग चीज़ों को देखेंगे। अब यहाँ से हम कुछ स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि हमारे जो आर्ट्स की फैकल्टी के अंदर अलग अलग फील्ड्स के अंदर हम लोग कैसे मास्टर्स कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। सबसे पहली जो फील्ड हमने यहाँ पर चॉइस की है वो एजुकेशन की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो आमतौर पर क्या करते हैं कि उनको यही पता होता है कि 12 के बाद एजुकेशन की फील्ड में अगर हमको जाना है तो हम जो है वो 2 साल का डीएड का कोर्स कर लेते हैं, जिसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कहते हैं। उसमें आप कर सकते हैं, अगर आप एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें जा सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ प्राइमरी लेवल पर ही क्यों सोचते हैं? आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप जो है वो पीएचडी करें, डॉक्टरेट करें, एमफिल करें, नेट सेट करें और आला से आला तालीम हासिल करें, रिसर्च के शोबे में जाएं, और इस तरीके से एजुकेशन भी एक बहुत अच्छा जो है वो ऑप्शन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर वो जा सकते हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर देखिए एक दिया हुआ है बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। जो स्टूडेंट नए हैं मैं उनको बताऊं कि अभी बैचलर ऑफ एजुकेशन वैसे यूजुअली बीएड जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है, लेकिन अभी पिछले 1 साल 2 साल से जो है वो हुकूमत ने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है जिसको हम इंटीग्रेटेड बीएड कहते हैं। मतलब बीए बीएड बीएससी बीएड इस तरीके से 2 डिग्री एक साथ मिलती है, जो 12 के बाद हमारे स्टूडेंट 4 साल में कर सकते हैं। उसका एक सीईटी का इम्तिहान होता है, और बॉम्बे के अंदर या महाराष्ट्र में टोटल अभी 7 कॉलेज हैं, जिसमें से बॉम्बे में 2 कॉलेज हैं जिनको ये कोर्स दिया गया है। मुझको कॉलेज का नाम याद नहीं है, लेकिन बहरहाल वो मालूम पड़ जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसको इंटीग्रेटेड बीएड कहते हैं। तो जो लोग ये फोकस्ड हैं कि उनको टीचिंग में ही जाना है, तो वो इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं, जिसमें उनको एक साथ 2 डिग्री मिलेगी, यानी बीए बीएड या बीएससी बीएड, उनको ये 2 डिग्री मिलेगी। अगर आप जो है वो जूनियर कॉलेज लेवल पर टीचिंग करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में आपको जो है वो मास्टर डिग्री के साथ बीएड करना होगा। यानी अगर आप जो है वो साइंस फैकल्टी में पढ़ाना चाहते हैं तो आप एमएससी के साथ बीएड कीजिए, कॉमर्स में है तो एमकॉम के साथ बीएड कीजिए, और अगर आर्ट्स फैकल्टी के अंदर पढ़ाना चाहते हैं तो एमए बीएड कीजिए। तो बीएड एक अच्छा ऑप्शन है, 2 साल ग्रेजुएशन के बाद होता है, इसका सीईटी होता है, सीईटी का इम्तिहान देने के बाद आप जो है वो बीएड कोर्स कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स एजुकेशन की फील्ड में ही मास्टर्स करना चाहते हैं तो आप एमएड भी कर सकते हैं, मास्टर इन एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन। ये आमतौर पर बीएड के बाद 2 साल का कोर्स होता है, और जो डीएड कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं डीएड कॉलेज में, उनको पढ़ाने के लिए मास्टर ऑफ एजुकेशन ज़रूरी है। अभी इसका एक पैरेलल कोर्स भी कई साल से कई यूनिवर्सिटीज चलाती हैं, जिनको हम एमए इन एजुकेशन कहते हैं। तो एमए इन एजुकेशन भी जो है वो कमोबेश वैसा ही कोर्स है। ये है कि एमएड बाकायदा रेगुलर होता है, और एमए इन एजुकेशन रेगुलर और डिस्टेंस एजुकेशन दोनों में हो सकता है। उसके बाद नेट और सेट आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप जो है वो डिग्री कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स को, तो आपको अपने पर्टिकुलर मास्टर्स के सब्जेक्ट में नेट या सेट देना होगा। इन दोनों का डिफरेंस ये है कि अगर आप नेट का इम्तिहान देते हैं तो आप नेशनल लेवल पर एलिजिबल हैं फॉर टीचिंग इन सीनियर कॉलेजेस, और अगर आप सेट का इम्तिहान क्वालिफाई करते हैं तो आप जो है वो स्टेट लेवल की किसी भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के अंदर आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर
जा सकते हैं। और फिर आगे चल के आप जो है वो एमफिल कीजिए, आप अपने कंसर्न सब्जेक्ट से जो है वो पीएचडी कीजिए। मतलब स्काई इज द लिमिट। मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर भी जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, इसको जो है वो लोग एक सब्सटीट्यूट फील्ड के तौर पर सोचते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को इसमें जाना चाहिए और जो है वो एजुकेशन की फील्ड में हायर एंड हायर क्वालिफिकेशन हासिल करनी चाहिए। देखिए आर्ट्स के अंदर ये खास तौर पर जो अभी आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये खास तौर पर बेसिकली जो है वो मैं टारगेट करता हूँ कि ये गर्ल्स के लिए ज़्यादा अच्छे कोर्सेस है, या गर्ल्स इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। बीए इन होम साइंस एंड बीएससी इन होम साइंस, होम साइंस के कोर्सेज हैं। हमारे यहाँ एसएनडीटी यूनिवर्सिटी है जिसके तहत ये कोर्सेज बहुत अच्छे चलाए जाते हैं। उसके अलावा बॉम्बे यूनिवर्सिटी में भी ये कोर्सेज हैं, पुणे यूनिवर्सिटी में भी हैं, लेकिन हमारे अतराफ में बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। दिल्ली वगैरह के अंदर भी कई एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर आप होम साइंस के कोर्सेज जो है वो कर सकते हैं और उसके अंदर एक अच्छा करियर आप बना सकते हैं। मैं एक दो छोटी एग्जांपल आपको दूंगा। देखिए हमारे घरों के अंदर बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो ड्रेस डिजाइनिंग जिनको बहुत अच्छी आती है, या घर में जो है वो शादी ब्याह के मौके पर वो ब्यूटिशियन के तौर पर बहुत अच्छा काम करती है अच्छी हेयर स्टाइलिस्ट है। तो क्यों ना आप अपने इसी पैशन को, आप अपने इसी चीज को एज अ प्रोफेशन और एज अ बिजनेस मॉडल के तौर पर जो है वो एक्सेप्ट करें। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है जो कैटरिंग देखिए करते हैं। आज भी हमारे यहाँ घरों के अंदर जो है वो बड़े पैमाने पर खाना जो पक कर आता है कैटरर से आता है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको हम लोग एज अ बिजनेस मॉडल अपनी कम्युनिटी के अंदर अपने लोगों के साथ और भी बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस मॉडल के तौर पर सेटअप कर सकते हैं। तो ये अपने तौर पर बड़ी कंपनीज के अंदर बड़े हेयर स्टाइलिस्ट और डिजाइनर वगैरह के साथ काम करने का मौका तो है ही इन कोर्सेज के बाद, लेकिन ये जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होने का भी एक बहुत अच्छा जरिया है। तो आप एज अ ब्यूटिशियन, एज अ डाइटिशियन, फैशन डिजाइनर के तौर पर, ड्रेस डिजाइनर के तौर पर, इंटीरियर डेकोरेटर के तौर पर, हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पर, स्टाइलिस्ट के तौर पर, कैटरिंग टेक्नोलॉजी है, न्यूट्रिशनिस्ट है, ये बहुत सारे जो कोर्सेज हैं जिनके अंदर आप जो है वो बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है खास तौर पर गर्ल्स के लिए। वैसे बॉयज भी जा सकते हैं, इसके अंदर कई कोर्सेज हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग है, हेयर स्टाइलिंग है। आज अगर आपको ये पता होगा कि आज जो है वो टॉप मोस्ट हेयर स्टाइलिस्ट इंडिया का कौन है, तो आपको सुनकर खुशी होगी कि वो जावेद हबीब हैं। आप देखिए कितना बड़ा ब्रांड उन्होंने क्रिएट किया है। या ब्यूटिशियन के अंदर शहनाज हुसैन का आपने नाम सुना है, आज जो है वो वर्ल्ड रिनोन ब्रांड है। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे लोग आए और उसके अंदर रिसर्च करें और इसको एज अ करियर अपनाएं तो बहुत फायदा जो है वो होगा उसके अंदर। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है लॉ के बारे में। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड जो है वो है लॉ की, जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स को आज बड़े पैमाने पर आने की जरूरत है। लॉ के जो कोर्सेस है वो आमतौर पर दो तरीके से होते हैं 12th के बाद। एक ये होता है कि आप जो है वो 12th के बाद अगर करना चाहते हैं तो आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कीजिए। तो 5 में आप जो है वो BA LLB BSc LLB आपको डिग्री मिल जाएगी और आप जो है वो एक अच्छे प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छी, तो आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर बन सकते हैं इस फील्ड के अंदर। और अगर आप जो है वो अभी 12th के बाद नहीं जाना चाहते हैं तो आप जो है वो ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्स 3 साल का होता है LLB का कोर्स। तो BA BCom BSc किसी भी फैकल्टी के, तीनों फैकल्टी के लोग जो है वो इसमें जा सकते हैं। और LLB करने के बाद 2 साल की मास्टर्स डिग्री भी होती है इसके अंदर जिसको हम LLM कहते हैं। और LLM करने के बाद ही, या LLB करने के बाद अगर आपके पास जो है वो 2 साल 3 साल का प्रैक्टिस करने का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो हमारे MPSC के थ्रू महाराष्ट्र के अंदर एक इम्तिहान होता है। वैसे तमाम ही स्टेट लेवल पर ये एग्जाम्स होते हैं जिनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एग्जाम्स कहते हैं। महाराष्ट्र में है तो उसको, उस एग्जाम को कंडक्ट MPSC के थ्रू होता है, वो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विसेज कमीशन के थ्रू। और अगर आपने गुज़िश्ता दिनों सुना होगा तो आपको पता होगा कि यूपी का और राजस्थान का जो रिजल्ट आया पिछले दिनों, राजस्थान से जो इस इम्तिहान के अंदर टॉप किया था जिस स्टूडेंट ने, मैं नाम भूल रहा हूँ इस वक्त फिलहाल अभी उनका, उन्होंने जो है वो 21 साल की उम्र में जो यंगेस्ट सिविल जज बनने का एजाज हासिल किया है। यंगेस्ट सिविल जज वो बने हैं। और भी आपने देखा होगा कि काफी लोगों ने जो है वो यूपी में, बिहार में इस इम्तिहान को क्रैक किया है, महाराष्ट्र में इस इम्तिहान को क्रैक किया है।
तो सिविल जज बनने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो लॉ के जरिए जाता है। अब यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमको याद रखनी है। पहली चीज ये है कि देखिए, लॉ का जो कोर्स है ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल जो हमारे यहाँ की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर एलएलबी और एलएलएम के कोर्स चलते हैं, जिनके लिए जो इम्तिहान होता है, ये इम्तिहान आमतौर पर स्टेट लेवल का इंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको नॉर्मली महाराष्ट्र के अंदर हम महा सीईटी लॉ कहते हैं। लेकिन पूरे पैन इंडिया लेवल पर, पूरे ऑल ओवर इंडिया, ये इम्तिहान जो होता है, जो हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर टोटल 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से 4 लॉ यूनिवर्सिटीज जो है वो महाराष्ट्र में है। तो ये जो 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, इन यूनिवर्सिटीज के लिए एक स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको हम क्लैट कहते हैं, CLAT। आपके स्क्रीन पर जो है वो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक छोटे से बॉक्स में नजर आ रहा है, क्लैट, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड एडमिशन टेस्ट। तो हमारे मुल्क के अंदर दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली को छोड़कर बाकी की जो 21 लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, वो अपने यहाँ एडमिशन के लिए इस इम्तिहान को कंडक्ट करती हैं। और मेरा ख्याल है कि अभी इस इम्तिहान की 15 जून जो थी लास्ट डेट थी इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए। अगर आप जो है वो कंजोर्शियम ऑफ लॉ इस वेबसाइट के ऊपर देखेंगे तो इसकी और आपको डिटेल भी मिल जाएगी। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10th के बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से जो है वो लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको इस नेशनल लेवल के जो है वो एग्जाम में बैठना चाहिए। 4,000 रुपये इसकी इंटरेस्ट फीस होती है, और हर स्टेट के अंदर जो यूनिवर्सिटीज होती है उनका मेरिट लिस्ट लगती है, उसकी बेस पर आपको एडमिशन मिलता है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप जो उन बुक्स का जो है वो स्टडी कीजिए और इस एग्जाम में शरीक होइए, और क्लासेस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर महाराष्ट्र लेवल के एग्जाम में बैठना है तो उसकी फीस कम है, उसकी फीस 800 रुपया फीस है, और 1,000 रुपया जो है वो ओपन कैटेगरी के लिए है। फर्क सिर्फ इतना है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज के करिकुलम में हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क होगा। तो आप अगर अच्छा आपका एप्टीट्यूड है तो आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए जाना चाहिए। उसके बाद आप LLB कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, LLM कीजिए। LLB करने के बाद 2 साल मास्टर डिग्री होती है, आप उसमें LLM कर सकते हैं। उसके बाद अगर और आपको और आगे जो है वो जाना है तो आप एज JMFC का एग्जाम दे सकते हैं। ये एग्जाम जो है वो MPSC और स्टेट के जो पब्लिक सर्विसेज कमीशन होते हैं उनके जरिए होता है। अगली फील्ड जो है वो मीडिया एंड जर्नलिज्म है। आज भी इसकी भी हम लोग बात करें तो आप देखते हैं कि आज मीडिया में ईमानदार लोगों की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। 12th के बाद अगर आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास प्रीरिक्विजिट क्या होने चाहिए, पहले आप उनको समझ लीजिए कि कम से कम आपको जो है वो कंप्यूटर में और मीडिया से रिलेटेड जो चीज़ें उनके अंदर थोड़ा बहुत अच्छी खासी एक्सपर्टीज अगर आपके पास होती है तो कोर्सेज करने में आपको बहुत आसानी होती है, खासतौर पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहते हैं तो। यस, हेलो हेलो, जी आप कंटिन्यू रखिए भाई। अच्छा जी जी। तो इस तरीके से आप जो है वो मीडिया एंड जर्नलिज्म के अंदर आप जा सकते हैं। कोर्सेज के नाम काफ़ी अलग अलग हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक कोर्स आपके सामने लिखा है, BMM यानी बैचलर ऑफ मास मीडिया। कहीं कहीं पर ये बैचलर ऑफ मास मीडिया एंड जर्नलिज्म या इस तरीके के अलग अलग थोड़े बहुत नाम होते हैं, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो आप जो है वो इस तरीके के कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अंदर कई एक कोर्सेज डिप्लोमा बेस्ड होते हैं। आप जो है वो 12th करने के बाद ग्रेजुएशन अगर आपने किसी और फैकल्टी से किया है, मास मीडिया नहीं भी किया है, तो भी आप जो है वो डिप्लोमा कर सकते हैं। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर, पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर, नागपुर के अंदर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके के टॉप मोस्ट कोर्सेज चलते हैं। खासतौर पर अगर आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नाम सुना होगा तो आपको ये पता होगा कि इंडिया के अंदर वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट फॉर मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म जामिया मिल्लिया इस्लामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। तो आप वहाँ से इन कोर्सेज को कर सकते हैं और जो है वो अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप कर सकते हैं ईमानदाराना। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैकल्टी है मीडिया एंड जर्नलिज्म।
हालांकि कोविड के बाद जो है वो सबसे जो डाउन फील्ड हम लोग कह सकते हैं वो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, जिसके अंदर फिलहाल तो अभी बहुत खराब सूरत हाल हो सकती है। लेकिन आप यकीन मानिए कि जितनी तेजी से टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी या होटल मैनेजमेंट के कोर्सेस ने लोगों के दरमियान मकबूलियत हासिल की, लोगों के दरमियान पॉपुलर हुए, उतनी तेजी से और उतनी तेजी से शायद किसी दूसरे कोर्स में इतना ज़्यादा पिछले दिनों देखने में, मतलब देखने में नहीं आया। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स है कि आप जो है वो हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, जिसके अंदर जो है वो अब मेडिकल टूरिज्म और इस तरीके की बहुत सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं, यानी टूरिज्म प्लस मेडिकल, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आप जो है वो 12 के बाद ये कोर्स कर सकते हैं। 12 के बाद जो है वो आमतौर पर 3.5 साल 4 साल का कोर्स होता है ये, जिसके अंदर जो है वो आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है और एक इंट्रेंस एग्जाम होता है। उस इंट्रेंस एग्जाम के जरिए आप जो है वो ये कोर्स कर सकते हैं। बॉम्बे में बहुत अच्छा है एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, जो मेरा ख्याल है कि शायद वाशी या किसी तरफ बड़ा इंस्टीट्यूट है वो। आप नेट पर हम लोग उसकी डिटेल ले सकते हैं। उसके अलावा औरंगाबाद एक बहुत अच्छा हॉटस्पॉट है इसके लिए, टूरिज्म के कोर्सेस वहाँ पर। एक सेकेंड। तो वो कोर्सेस में हम लोग जा सकते हैं टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट के लिए। तो 12 के बाद ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें 11 और 12 करने के बाद आप किसी भी फैकल्टी से हो, आर्ट साइंस कॉमर्स से, उसके बाद इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। देखिए, यूजुअली अभी आपके स्क्रीन के ऊपर बिजनेस मैनेजमेंट है। यूजुअली हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट ही बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस बिजनेस स्टडीज के कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज जो है वो तीनों फैकल्टीज के स्टूडेंट्स के लिए है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो आप जो है वो कोर्स पे बिल्कुल जा सकते हैं। और 12 के बाद जो है ये कोर्सेज होते हैं। अदर देन मुंबई यूनिवर्सिटी, इन कोर्सेज को आमतौर पर बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। आगे चल के इन्हीं कोर्सेज को मास्टर लेवल पर, मास्टर डिग्री जिसको कहते हैं, उसको एमबीए कहते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर इन कोर्सेज को हम लोग जो है वो बीएमएस कहते हैं, यानी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। और ग्रेजुएशन के बाद जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उसको मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कहते हैं। दोनों कोर्सेज का नाम अलग है, लेकिन दोनों कोर्सेज ऑलमोस्ट सेम है। कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर और खासतौर पर जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज होती है, उनके अंदर इनको जो है वो बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज और इस तरीके के नाम दिए जाते हैं। तो अगर आपका एप्टीट्यूड है इस तरफ कि आप जो है वो मैनेजमेंट के कोर्सेज को ज्वाइन करें, तो ऐसी सूरत में आपको जो है वो 12 होगा। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो आपको जो है वो ऐसे कोर्सेज में दाखिला आसानी से मिल जाएगा। बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो हमारे सामने नज़र आते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर जो है वो ये कोर्सेज चलते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर आपको जो है वो एमबीए करना है या एमएमएस करना है, यानी बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में जाना है, तो हमेशा किसी ऐसे कॉलेज का ऐसे कॉलेज को चॉइस कीजिए, ऐसे कॉलेज का इंतखाब कीजिए जिन कॉलेजेस के अंदर प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो, जिन कॉलेजेस के अंदर फैकल्टी बहुत अच्छी हो। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने शुरू तो कर दिया, लेकिन वहाँ पर शायद हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत ये है, अक्सर वो बेशतर मिलते हैं कि सर लेक्चर नहीं हो रहे हैं और जो है बस फीस बहुत ज़्यादा है। और ये तो उनको डिग्री तो मिल जाती है, बट दे आर एज इक्वल एज नॉर्मल ग्रेजुएट। तो ऐसा करने के बजाय जो है वो ये कोशिश करनी चाहिए हमको कि जो अच्छे टॉप मोस्ट रैंकिंग के कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो है वो आप जो एक अच्छा करियर इसके अंदर बना सकें। और बाद में जो है वो आप मास्टर डिग्री कीजिए, एमबीए कीजिए, एमएमएस कीजिए, इसके अंदर पीएचडी भी कर सकते हैं आप। कई एक फैकल्टीज है इसके अंदर आजकल जो है, फार्मा के अंदर हो रहा है, आईटी के अंदर पहले से है, एचआरडी है, और इस तरीके के भी बहुत सारे, मार्केटिंग फाइनेंस तो है ही। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास, हमारे सामने स्टूडेंट्स के पास है, नज़र में है, तो वो इनके अंदर करियर बना सकते हैं।
हम आते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में अगर आप जानते नहीं हैं या आपने कुछ सुन रखा है, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे मुल्क को जो लोग चलाते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो दरअसल हमारे यहाँ वो सारे के सारे जो होते हैं सिविल सर्वेंट होते हैं। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, कहीं के कलेक्टर हैं, कहीं के म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, या जो है रेलवे के अंदर बड़े ऑफिसर हैं, या बैंक के अंदर जो है वो बैंक के अंदर मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। इन सारे लोगों को जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जरिए ही जो है वो ये ऑफिसर्स बनते हैं। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें ज्यादातर एग्जाम जो होते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद होते हैं। तो आप 12 के बाद अगर ग्रेजुएशन करते हैं और आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिलचस्पी रखते हैं, तो उसकी अभी से लेकिन तैयारी कीजिए। अभी आप अगर 10th या 12th के अंदर हैं, तो अभी से उसकी तैयारी कीजिए। और कम से कम पहली कोशिश ये कीजिए कि आप जो है वो रोजाना जो है वो न्यूज़पेपर का अच्छे से उसको मुताला करने की आदत डालिए, जनरल नॉलेज अपना इम्प्रूव कीजिए। और उसके अलावा जो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू है और जो इस तरीके की दूसरी जो तैयारी की चीजें, उनकी तैयारी कीजिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात होते हैं, ये आमतौर पर इनका पैटर्न एक जैसा होता है, सिर्फ लेवल कम या ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टाफ एसएससी, एकदम बीच में लिखा हुआ देखिए तीसरे नंबर पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये रेलवे के जो इम्तिहानात होते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के। तो इसमें कुछ इम्तिहानात ऐसे होते हैं जिनको हम 10वीं के बाद भी दे सकते हैं, कुछ इम्तिहानात ऐसे होते हैं जिनको हम 12वीं के बाद भी दे सकते हैं, कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनको हम ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 10वीं के बाद के जो इम्तिहान होते हैं उनका लेवल कम होगा, उनके अंदर हम लोग जो है वो उनके अंदर तैयारी की जरूरत कम पड़ेगी। लेकिन ये है कि इनका सिलेबस इतना वास्ट होता है, इतनी चीजें होती, इतनी ज्यादा चीजें हमको स्टडी करनी पड़ती है कि हम अगर थोड़ी थोड़ी स्टडी करते रहे, तैयारी करते रहे, तो इन इम्तिहानात को क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। बैंकिंग के अंदर जाने के लिए अगर आप जो है वो जो गवर्नमेंट के पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग जो होती हैं, उनके अंदर अगर आप जो है एज ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जो है इंडियन बैंकिंग पर्सनल सर्विसेज है, उसके अंदर आप जा सकते हैं। हर स्टेट के पब्लिक सर्विसेज कमीशन होते हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विसेज कमीशन। आपने देखा होगा कि अभी गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र पब्लिक सर्विसेज कमीशन का रिजल्ट आया, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा किया है, जिनके लिए बहुत अभी जिनके बारे में आ रहा है कि उनको कहीं पर किसी को जो है सेक्शन ऑफिसर के तौर पर कोई बना है, कोई कहीं पर कलेक्टर के तौर पर बना है। इस तरीके के अलग अलग उन्होंने तैयारी की थी। ऑलरेडी वो सर्विस में थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि मान लीजिए आपने रेलवे का इम्तिहान दिया, आप जो है वो रेलवे के इम्तिहान के अंदर कामयाब हो गए, आपको रेलवे के अंदर एक अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन अब आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। आप अपने आप को जब इम्प्रूव करेंगे तो आप जो है वो और आला ओहदों पर जा सकते हैं। तो और हमारे मुल्क के अंदर जो टॉप मोस्ट इम्तिहान जो होता है, उसको हम कहते हैं सिविल सर्विसेज के इम्तिहान, जो हमारे मुल्क का अदारा यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन उसको कंडक्ट करता है। हर साल आमतौर पर जो है वो जून अप्रैल के महीने में इसके नोटिफिकेशन आ जाते हैं। 3 लेवल पर ये जितने भी इम्तिहान है, आमतौर पर इनमें 3 लेवल कॉमन है। पहला जो लेवल होता है उसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी इम्तिहान, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, है ना, एकदम इब्तदाई लेवल का। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो लोग पास आउट होते हैं, वो उसके दूसरे लेवल पर जाते हैं, जिसको हम लोग मेंस कहते हैं। वो मेंस में अपीयर होते हैं। मेंस इम्तिहान में अपीयर होने के बाद अगर आप जो है वो टॉप के 2500 या 3000 या 4000 या 10,000 में आते हैं, तो उनके अंदर वो सॉर्ट आउट करके जो है वो फिर इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। और फिर इंटरव्यू की बेस पर आपको आपकी रैंकिंग की बुनियाद पर आपको जो ओहदा है वो मिलता है, जिसके अंदर आपका टॉप मोस्ट ओहदा जो होता है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, जिसके अंदर हम अंडर सेक्रेटरी और कलेक्टर और टॉप मोस्ट लेवल पर जाते हैं। उसके बाद जो है आईपीएस है, आईएफएस है, फॉरेन सर्विसेज में है, अकाउंट सर्विसेज में है, ऑडिटिंग सर्विसेज में है, रेलवे के कमिश्नर हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर जो टॉप मोस्ट अहदेदारान होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। वो बोलने का मतलब ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के जो टॉप मोस्ट लोग होते हैं, वो सारे के सारे लोग जो है कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात के जरिए जो है यहाँ तक के पहुँचते हैं। तो ये सारे रास्ते जो है वो 11th और 12th के बाद ही आप आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में और भी मालूमात हासिल कीजिए। ये एक सेशन के अंदर आपको बहुत सारी मालूमात, बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं मिली होगी,
लेकिन एक ओवरऑल अगर आइडिया आपको आ गया तो आप अपना एक टारगेट सेट कीजिए। टारगेट सेट करने के बाद जो है वो आप उसकी मालूमात हासिल कीजिए। मालूमात हासिल करने के बाद आप जो है वो अपने पास उसको एक सिस्टमेटिक प्लान कीजिए। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे अदारे भी हैं जो तैयारी करवाने के लिए जो है वो स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अगर वो डिजर्विंग कैंडिडेट है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी भी करवाते हैं, जिनके अंदर बॉम्बे के अंदर कई एक है, दिल्ली के अंदर है, साउथ के अंदर, चेन्नई के अंदर है, कई एक है। नेट के ऊपर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बॉम्बे के अंदर हज हाउस आप जानते होंगे। उसके अलावा जो है वो वीटी के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट का एक अदारा है जिसका नाम ही जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, उसकी तैयारी कराने का अदारा है। दिल्ली के अंदर ज़कात फाउंडेशन, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द और भी बहुत सारे हैं। नागपुर के अंदर कई एक अदारे हैं। ये हमारे तलबा को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो आपको तैयारी कराने वाले और ऑफिसर बनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं। सिर्फ आपको अपने अंदर हौसला जगाना है और आपको जो है वो अपने सही एप्टीट्यूड के साथ सही कोर्स के पीछे का तयन करना है, को तय करना है और उसके बाद जो उसकी तैयारी करना है। मेरा ख्याल है कि और भी अगर कोई चीज़ें होंगी तो आप जो है वो सवालात पूछ सकते हैं। एएमपी जो है वो इस ताल्लुक से बहुत काम कर रही है। आप उसकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है वो अलग अलग करियर काउंसलिंग के भी जो सेशंस होते हैं स्कूल के अंदर वो करते रहते हैं। बहुत सारी मालूमात अवेलेबल है, बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो आप तमाम लोगों से दुआ की भी दरख्वास्त है और भी कोई अगर मालूमात कोई हासिल करना चाहे तो सवालात पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी। हेलो जी हाँ जी जी। जी वो कंप्लीट हुआ अगर कुछ। हाँ हाँ जी, 2 मिनट अस्मा मैडम ज्वाइन कर रही हैं जी। जी अस्मा मैम, ओवर टू यू। Hello, Assalamu alaikum. So I have a few questions here for the speaker. Yes. Yeah, I have done 11th and 12th in commerce stream. Then I changed to arts. After BA, I want to become an event manager. So can I do event management after BA? Which is the best institution for event management? देखिए हेलो, आ रही आवाज? हाँ हेलो जी जी। इवेंट मैनेजमेंट के कोर्स कर सकते हैं और आमतौर पर इवेंट मैनेजमेंट के जो कोर्सेज होते हैं ये आप इसमें डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं कई एक जो शॉर्ट टर्म के प्राइवेट बहुत सारे इंस्टीट्यूट डिप्लोमा कोर्सेज करवाते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन इसमें ये होगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो कम से कम जो है वो हम लोग ये कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो MBA या MMS कर सकते हैं जिसके अंदर हम लोग इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं। मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर जो है वो कई एक इंस्टीट्यूट बॉम्बे के अंदर भी है जिनके अंदर जो है वो NAEMD करके हैं, इंडियन स्कूल ऑफ मीडिया और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, ये कुछ हैं जहाँ पर किए जा सकते हैं कोर्सेज। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहाँ पर MBA वगैरह के कोर्सेज चलते हैं। वहाँ पर भी कई एक इंस्टीट्यूट के अंदर हम लोग जो है वो ये देख सकते हैं। एक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट है। ये बॉम्बे के कुछ एक कोर्सेज है जहाँ पर हमारे स्टूडेंट जो है वो इवेंट मैनेजमेंट के कई एक कोर्सेज जो है वो कर सकते हैं। और नॉर्मली एक सेकंड, तो ये इवेंट मैनेजमेंट के ये कोर्सेज का मैंने एक दो नाम आपको बताया है कि मुंबई के अंदर जो है NAEMD इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, इंडियन स्कूल ऑफ मीडिया, ये कुछ एक नाम जो है वो अभी फिलहाल मैं सर्च भी कर रहा हूँ और वो नज़र आ रहे हैं। नवी मुंबई के अंदर कुछ एक इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। MGM बहुत टॉप मोस्ट है, खारघर या नवी
मुंबई पनवेल के अंदर MGM इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, और उसके अलावा कुछ एक जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पर ये कोर्सेज चलते हैं, ये कोर्सेज किए जा सकते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज जो है वो किए जा सकते हैं इस तरीके से। उसके अलावा कुछ एक डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज भी हैं जो आमतौर पर 1 साल और 2 साल के होते हैं, जिनके अंदर जो है वो ये चीज़ें बताई जाती है इवेंट मैनेजमेंट के ताल्लुक से। ठीक है। Roll into arts. Hello. जी हेलो, जी हेलो। Can a science student after 12 enroll into arts? हाँ, साइंस स्टूडेंट कैन एनरोल इनटू आर्ट्स फैकल्टी। एक्चुअली साइंस स्टूडेंट कैन गो टू एनी फैकल्टी एज पर देयर चॉइस। उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो आर्ट्स फैकल्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उनको जो है वो आर्ट्स फैकल्टी से ही कुछ करना है तो आसानी से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उनको जो है वो डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं। What is catering technology? कैटरिंग टेक्नोलॉजी में हम आमतौर पर ये देखते हैं कि आजकल जो है वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा कैटरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, कि हम अपने यहाँ बहुत सारे कैटरर्स को देखते हैं जो शादी ब्याह के मौके पर या घर में किसी फंक्शन के मौके पर बाकायदा जो पकवान तैयार करके जो प्रोवाइड करते हैं ना। आपने जो है वो कई लोगों के लिए ऑर्डर कर दिया और उन्होंने तैयार करके आपके यहाँ, ये एक नॉर्मल सेंस है जिसको हम लोग जो है वो कैटरिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं कि खाना पका करके तैयार करना, खाना पकाना कैटरिंग में आता है। लेकिन कैटरिंग के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आजकल देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो अपना केक का कुछ ब्रांड जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, या जो है नए नए ब्रांड जो है मार्केट में आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कैटरिंग और उससे रिलेटेड ही है, जिनके अंदर जो है वो कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं, या आप जो है बेकरी के बहुत सारे आइटम्स को जो है वो तैयार करके अपने तौर पर ब्रांड भी जो है वो मार्केट के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिनके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, ये सब कैटरिंग के अंदर आती है। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है छोटे बड़े पैमाने पर। तो आप क्या करना चाहते हैं ये उसमें इम्पोर्टेंट है कि कैटरिंग के अंदर आप क्या किस लेवल पर जाना चाहते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं उसके लिए। What courses should I do to work in an embassy? हाँ, एम्बेसी में देखिए जाने के लिए एक तो बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप जिस एम्बेसी में काम करना चाहते हैं कम से कम आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस के ऊपर कमांड हो, है ना, क्योंकि इसके अंदर लैंग्वेजेस की बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अच्छी चीज़ ये होगी कि अगर आप जो है ट्रांसलेशन स्टडीज़ और फॉरेन लैंग्वेज वगैरह के कोर्सेज करते हैं तो आप जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप जो है वो लैंग्वेजेस स्टडीज़ के थ्रू जो है एम्बेसीज के अंदर जब भी उनके यहाँ कोई वैकेंसी निकलती है तो उनकी वेबसाइट के ऊपर आमतौर पर दिया हुआ रहता है कि अभी हमको इनकी इनकी ज़रूरत है। तो लेकिन वो प्रीफर यही करते हैं कि आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हो। एक तो इंटरनेशनल लैंग्वेज आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, अच्छी हो। उसके अलावा भी अगर आप जो है वो दूसरे जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं या अरेबिक वगैरह है, पर्शियन वगैरह है, जर्मन है और दूसरी चीज़ें हैं, तो अगर आप उनमें करते हैं तो आपको एक अच्छा स्कोप मिल सकता है। एम्बेसीज के अंदर काम करने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। What is the scope for psychology? देखिए साइकोलॉजी के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो साइकोलॉजी के ताल्लुक से मैं, एक चीज़ ये होती है कि एक आप जो है वो नॉर्मली जो डॉक्टर्स MBBS करने के बाद जो होते हैं कुछ एज अ साइकेट्रिस्ट के तौर पर काम करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में आती हैं जिनको हम जो मेडिकल के थ्रू करते हैं, मेडिकल फील्ड के थ्रू करते हैं। तो आप मेडिकल फील्ड के थ्रू करने के बाद भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर, और अब आजकल तो मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत इश्यूज हैं, तो इसके अंदर काफ़ी स्कोप भी है। और उसके अलावा भी अगर आप जो है वो साइकोलॉजी में करना चाहें तो आप जो है वो MA इन साइकोलॉजी आगे चल के PhD कर सकते हैं। क्रिमिनल साइकोलॉजी एक बहुत अच्छी फील्ड है। इस तरीके के साइकोलॉजी के अंदर आप बहुत सारी फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन और बहुत अच्छा करियर चॉइस है इसके अंदर आपके लिए। I have heard of sports journalism in my academic book. Can you please tell me what's that? पोस्ट क्या? Journalism. पोस्ट जर्नलिज्म? स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में? अच्छा, जी, अच्छा, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। हाँ देखिए एक्चुअली कैसा है कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की जो बात हो रही है, एक्चुअली बेसिकली आपकी फील्ड जो है जर्नलिज्म की ही है।
आप जो है वो जर्नलिज्म में ही है ना। लेकिन आप एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट काम करना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के बारे में अगर आप जो जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो अगर आप किसी न्यूज़पेपर के साथ काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर आप जो वो लोकल रिपोर्टिंग करते हैं तो आप जो स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। आजकल जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं, चाहे वो टीवी चैनल्स हो और चाहे प्रिंट मीडिया हो, इनके पास जो है वो हर एक के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग शोबे होते हैं, जिनके अंदर लोग जो है वो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। जैसे अगर आप जो है वो बहुत सारे अखबार पढ़ते होंगे तो आपने उसमें अयाज मेनन का नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। या अगर आप जो है वो हर्षा भोगले के कॉलम देखते होंगे तो आप ये देखते हो कैसे उनको जो है वो समराइज करके लिखते हैं। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बेसिकली आप जो है वो जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप जो है वो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के शोबे में काम करते हैं। अब स्पोर्ट्स के शोबे में काम करने के लिए आपके पास जो है वो एक तो ये कि आप के पास मालूमात अच्छी खासी होनी चाहिए, और फिर आप जो है वो अगर आप क्रिकेट की जो है वो चीज़ें बता रहे हैं या उसके ऊपर कॉलम लिख रहे हैं या उसके बारे में न्यूज़ जो है बता रहे हैं, तो आपको जो है पर्टिकुलर उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो होना, मालूमात लेकर के फिर उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब स्पेशलाइज आपको होना पड़ेगा, कोई बाकायदा कोर्स नहीं है उसका, लेकिन आपको मालूमात हासिल करके उसी शोबे के अंदर, उसी डिपार्टमेंट के अंदर, उसी में आपको और एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी। Does the board percentage of a child matter if she or he wants to opt for psychology as a career? हाँ, 12 की लेवल पर तो असल में देखिए, अगर स्टूडेंट जो है वो नीट के थ्रू MBBS करता है और आगे जा करके साइकोलॉजी में कुछ करना चाहता है, जिसको हम लोग मेडिकल फील्ड से कहते हैं, तो ऐसी सूरत में तो उसके लिए नीट का स्कोर इम्पोर्टेंट है कि वो नीट के स्कोर की बेस पर उसको MBBS में या वो वहाँ पर होता है या नहीं एडमिशन। और अगर इन केस वो जो है वो नॉर्मल साइकोलॉजी के कोर्सेज मास्टर्स करता है, ये करता है, तो 12 के बाद आप कोर्सेज जहाँ पर चलते हैं उसके अंदर आप जो है BA इन साइकोलॉजी कीजिए, उसके बाद फिर जो है MA इन साइकोलॉजी कीजिए, और इस तरीके से आगे आप जो है वो कोर्सेज कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपका 12 का परसेंटेज मैटर करता है। लेकिन अगर आप जो है मेडिकल लाइन के थ्रू जा रहे हैं क्लिनिकल में, तो ऐसी सूरत में फिर आपका नीट का स्कोर और आपका जो वहाँ पर है वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। Can you explain about liberal arts and its scope in the near future? लिबरल आर्ट्स, हाँ। देखिए आर्ट्स के अंदर, एक सेकंड ना, मैं जरा सा I think it's a very specific question. तो आप जो जनरल क्वेश्चन है जो मासेस को मिलेगा वैसे क्वेश्चन दीजिए ना मैडम। इनको ऐसे जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वी कैन कनेक्ट देम टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। Okay. What is medical tourism? Where can we join and what is the scope for it? मेडिकल, तो देखिए टूरिज्म के टॉपिक पर जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि आप जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर मेडिकल टूरिज्म जो है वो हर मुल्क के अंदर, खासतौर पर इंडिया के अंदर, चूंकि मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो सस्ती हैं और बहुत अपग्रेडेड है, इसके लिए जो है वो खासतौर पर गल्फ कंट्रीज से और यूरोपियन कंट्रीज से या दूसरी कंट्रीज से लोग बहुत सारे आते हैं यहाँ पर, और मतलब टूरिज्म प्लस मेडिकल फैसिलिटीज का वो फायदा उठाते हैं। तो इसके अंदर आमतौर पर ये कोर्सेज जो होते हैं जिनके अंदर हम लोग जाते हैं, ये उससे रिलेटेड ही है, जो मैनेजमेंट के कोर्सेज है उससे रिलेटेड ही है। तो मैनेजमेंट के कोर्सेज के अंदर अगर जो है वो लोग इस फील्ड को ऑप्ट करते हैं तो ऐसी सूरत में जो है उनको ये बेनिफिट होता है कि मतलब इस फील्ड में वो काम कर सके, जिसमें बाकायदा उनके जो है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल से टाई अप होते हैं, और इस तरीके से फिर वो लोगों को मतलब कांटेक्ट करवाते हैं और अपने तौर पर जो है उसका फायदा लोगों को पहुंचाते हैं। There is a repeated question. What are the benefits of PhD? PhD जी, डॉक्टरेट। PhD अच्छा, हाँ। अच्छा। देखिए PhD आप किसी भी फैकल्टी में या किसी भी शोबे में करते हैं तो ये डॉक्टरेट लेवल है, और ख़ास तौर पर जो रिसर्च के शोबे में जो लोग जाते हैं उनके लिए डॉक्टरेट करना इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि जितने भी यूनिवर्सिटी और सीनियर कॉलेजेस में जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती हैं, उन पोस्ट के लिए डॉक्टरेट इज़ अ मस्ट। तो आपको जो है वो डॉक्टरेट करना ज़रूरी है अगर आपको जो है वो मतलब हायर एजुकेशन के अंदर या हायर पोस्ट पर जाना है,
तो ऐसी सूरत में आपको जो है वो आपके जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के ज़रिए आप जो है वो पीएचडी कर सकते हैं। और पीएचडी के लिए आपको पेट का जो एग्ज़ाम होता है, पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट होता है, हर यूनिवर्सिटी नॉर्मली उसका एग्जाम टेस्ट लेती है। और फिर उसकी बेस पर और आपके जो मास्टर्स के जो सब्जेक्ट होते हैं, मास्टर्स के सब्जेक्ट की बुनियाद पर आपको जो है उन कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। और फिर वो रिसर्च वर्क आपको कंप्लीट करना है, थेसिस कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद आप जो है वो अगर आपका थेसिस कंप्लीट होता है, आप पास हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है। उसके बाद आप जो है वो अलग अलग बहुत सारे अलग अलग शोबे हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज और सीनियर कॉलेजेस इज वन ऑफ देम। A lot of people object from studying open universities and say that the degree has no value. Which universities of India have good degree value? नहीं, देखिए ये जो है एक मिसकंसेप्शन है कि लोग ये समझते हैं कि शायद जो डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री की वैल्यू नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि डिस्टेंस एजुकेशन में आपने पढ़ाई और एग्जाम कैसे दिया है ये एक दूसरा मैटर है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिस्टेंस एजुकेशन का बेनिफिट ये है कि आप जो है वो सेल्फ स्टडी करते हुए एग्जाम दे सकते हैं। और किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको याद रखना है, वो आप ये याद रखिए कि क्या यूजीसी उस यूनिवर्सिटी को जिस यूनिवर्सिटी से आप वो डिग्री करना चाहते हैं, क्या यूजीसी ने उस यूनिवर्सिटी को अप्रूव किया है या नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको आपको ध्यान रखना है, जिसको आप नेट पर भी चेक कर सकते हैं। और नॉर्मली जो रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने तमाम कोर्सेज, मतलब मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो है वो रेगुलर एज वेल एज जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन में भी चलाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए पूना यूनिवर्सिटी देखिए, आप जो मुंबई यूनिवर्सिटी देखिए, हमारे मुल्क की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आप इन यूनिवर्सिटीज से जो है वो टॉप मोस्ट कोर्सेज कर सकते हैं। और ये सारी रेपुटेड यूनिवर्सिटीज हैं, इनके कोर्सेज की कोई वैल्यू कम नहीं है। और बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो टेक्निकल कोर्सेज है, वो तो डिस्टेंस एजुकेशन में नहीं चलता। लॉ जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन में नहीं किया जा सकता। तो अगर ऐसा कोई आपको बोलता है तो आप जो है वो पहले उसकी इंक्वायरी कीजिए। लेकिन आप ये समझ के चलिए कि जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपने वहाँ से भी कोर्स किया है तो कोई मसला नहीं है, और उसकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी रेगुलर की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। What is the age criteria to appear for UPSC exam? How to start the basic preparation for the UPSC exam? देखिए यूपीएससी के लिए एज क्राइटेरिया जो है वो 3 है। अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो 32 ईयर्स खत्म, उसके बाद जो है वो आपके पास चांस नहीं 21 ईयर्स से लेकर के 32, 21 बिटवीन 21 एंड 30 ओपन कैटेगरी के लिए। और अगर जो है वो ओबीसी कैटेगरी से तो 5 साल का और उसमें एक्सटेंशन है, 37 ईयर्स तक के हैं। अगर जो है वो SC ST से है तो उसमें और एक्सटेंशन है। तो बोलने का मतलब ये है कि 32 ओपन कैटेगरी के लास्ट है, ओबीसी को थोड़ा सा 3 साल का और रिलैक्सेशन है, और SC ST को 5 साल का और रिलैक्सेशन है, तो वो वहाँ पे 37 ईयर्स तक के जा सकते हैं। पहली चीज हम लोगों का एक स्पेशल लेक्चर भी है यूपीएससी पर मैडम, तो उसका डेट अगर आप बता दें लोगों को, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो वो स्पेशली यूपीएससी पर, लॉ एंड जुडिशरी पर लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह। और बेसिक प्रिपरेशन जो है वो उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि उसका प्रिपरेशन जो है वो स्टूडेंट्स को, वैसे तो अगर आप फोकस्ड है तो शुरू से कीजिए। आप जो है वो स्टार्ट से कीजिए, 7th 8th में 9th में 10th में स्टूडेंट है तो भी कर सकते हैं। आप कम से कम जो है वो स्टूडेंट को डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, उसको जनरल नॉलेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर, स्कॉलरशिप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर बैठने की जो है वो आदत डलवाइए। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उनकी तैयारी अभी से कर सकते हैं। और इसमें NCERT इसकी बुक्स जो होती है 7 to लेकर के 12 तक के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनके जरिए तैयारी की जा सकती है। और फिर जब 12 कर ले स्टूडेंट, तो 12 करने के बाद भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो 12 के बाद स्टूडेंट्स को अडॉप्ट करते हैं इन कोर्सेज के लिए, फिर वो ग्रेजुएशन भी करवाते हैं और फिर उसके बाद UPSC और MPSC की तैयारी भी करवाते हैं। या फिर आप ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई अगर आपकी है और आपकी अच्छी नॉलेज है तो आप जो है वो रेलवे के अंदर और ये सारे इम्तिहानात में भी बैठिए और इसकी भी तैयारी करते रहिए। तो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू है, द हिंदू न्यूज़पेपर है, और उसके अलावा फ्रंट लाइन मैगजीन है,
NCERT की बुक्स हैं, रेगुलर न्यूज़पेपर का मुताला करना है, ये सारी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है। और अगर स्टूडेंट जो है वो बहुत प्राइमरी क्लासेस में है, तो ऐसी सूरत में जो अभी से तैयारी कराने में कोई हर्ज नहीं है उसको। तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा उसका माइंड बना सकते हैं और तैयारी करा सकते हैं। Shehzad bhai, I think we have done with almost all the questions. So you can take the session forward now. Thank you so much, Asma ma'am. Okay. UPSC, I see many people have many questions relating to UPSC. तो मैं आप सबको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि UPSC से रिलेटेड जो है हम लोगों ने 1 जुलाई को एक सेशन रखा है जो कि सेम टाइम पे होगा 3 बजे। तो आपके जो भी UPSC से रिलेटेड क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप उस सेशन के अंदर आकर सारी क्वेरीज अपने सारे जो भी क्वेरीज रहेंगे उसके ऊपर जो है क्वेश्चंस रेज कर सकते हो आप। और ओवरऑल इट वाज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड सेशन एंड आई होप दैट एवरीवन हु अटेंडेड दिस सेशन, उन लोगों को जो है काफ़ी चीज़ें जो है समझने के एतबार से भी मिली होगी, अपने करियर में जो है आगे चल के किस तरह से क्या करना है उसके एतबार से भी उन लोगों को एक गाइडेंस मिला होगा कि आर्ट्स, जैसे कि हमारे स्पीकर साहब ने बताया ना कि आर्ट्स जो है अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो पढ़ाई में कमज़ोर है वही आर्ट्स में जाता है। ऐसे ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ाई में कमज़ोर है वही आर्ट्स में जाता है, बल्कि आर्ट्स जो है उसके अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेज है जिसके बारे में उन्होंने बताया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने करियर को जो है वो सही से चुने, अपने अंदर झांके कि मेरी जो है सलाहियत है, मेरे अंदर क्या हुनर है और उसको मैं किस तरह से अपना करियर बनाऊँ। एक चीज़ कल ये बतानी थी कि एक क्वेश्चन रेज हुआ था कि केटरिंग टेक्नोलॉजी के एतबार से, क्योंकि मैं उसी लाइन का हूँ तो मैं उस लाइन से खाली इतना बताना चाहूँगा कि केटरिंग टेक्नोलॉजी जो है ये होटल मैनेजमेंट में ऑप्शंस आते हैं, होटल मैनेजमेंट विद केटरिंग टेक्नोलॉजी और होटल मैनेजमेंट विद ट्रैवल एंड टूरिज्म भी आता है। तो केटरिंग टेक्नोलॉजी में बेसिकली ये लोग जो है ये आपको बल्क लेवल पे, मतलब बड़े पैमाने पर जो है किस तरह से केटरिंग को हैंडल किया जाता है ये बताते हैं। अगर आप होटल मैनेजमेंट विद केटरिंग टेक्नोलॉजी जो है ये सब्जेक्ट को लेते हो तो, और अगर आप जो है होटल मैनेजमेंट विद ट्रैवल एंड टूरिज्म लोगे तो उसके अंदर जो है आपको बेसिक होटल मैनेजमेंट के बारे में और ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में जो है बताया जाता है। तो केटरिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि हमारे फ़हीम भाई ने बताया ना, वो एकदम सही बताया कि आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह से केटरर्स जो है वो शादियों के अंदर जो है बड़े पैमाने पे खाना वगैरह करते हैं। तो ये हर एक के बस की बात नहीं है कि वो इतने बड़े लेवल पर जो है वो खाना बनाए और उसको जो है सर्विस भी दे। तो होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर इवेंट मैनेजमेंट भी एक पार्ट आता है, जिसके अंदर जो है इवेंट को किस तरह से मैनेज किया जाए और उस इवेंट के अंदर किस तरह से जो है हम जो है वो केटरिंग को जो है ये किया जाए। तो वो जो है केटरिंग टेक्नोलॉजी अगर आप लोगे तो वो सब्जेक्ट लोगे तो उसके अंदर जो है आपको इसके बारे में जो है पूरी तफसील से जो पढ़ाई कराई जाती है। मेरे ख्याल से 4 साल का कोर्स पूना यूनिवर्सिटी दे रही थी हमारे वक्त में, और 3 साल का इंडिया में आपने बॉम्बे यूनिवर्सिटी दे रही थी। उसके अंदर जो आखिरी साल होता है 4th ईयर या 3rd ईयर, उसके अंदर खुसूसन जो है वो इसी बारे में पढ़ाया जाता है कि फाइनल ईयर केटरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सब लोग जो यहाँ पर मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ आपकी मौजूदगी में यहाँ पर। तो हम आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि कल भी जो है यही सेशंस के लिए आप वापस से आए। कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो यही 3 बजे से 4 बजे तक का होगा, और ये टॉपिक जो है कल का रोड लेस ट्रेवल करके है। इसके अंदर उन करियर्स के बारे में बताया जाएगा कि जिन करियर्स को आप आज के दौर में लोग एक्सप्लोर ज़्यादा नहीं कर रहे, कि बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस भी है हमारे पास जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं है। तो उन करियर के अंदर हम किस तरह से जो है अपने करियर क्या है उस करियर को चूज़ करके उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में इंशाल्लाह कल बताया जाएगा। तो आप भी आए और आपके साथ में अपने दोस्त वगैरह जो हो गए उन लोगों को भी जो है इसके अंदर रजिस्टर करवा कर जो है ये सेशन अटेंड करने के लिए कहा जाए। कि ये सेशन जो AMP ऑर्गेनाइज करवा रही है ये खास जो है ये इसीलिए है कि ताकि स्टूडेंट्स जो है वो अपने फ्यूचर को लेकर फिक्रमंद हो जाए। देखो एक होता है फिक्रमंद आदमी जब हो जाएगा ना तो फिर वो अपने करियर के एतबार से जो है वो आगे का सोच लेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी जो है इसके अंदर जो है सेशंस के अंदर रजिस्टर करवा कर उनको भी जो है ये सेशन को जो है अटेंड करने के लिए कहा। एक छोटी सी दुआ होगी और फिर उसके बाद में हम लोग सेशन क्लोज कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या अव्वल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يسر لنا أمورنا كلها مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you everyone for joining. We'll see you again tomorrow inshallah. Assalamu alaikum.